Hello everyone. Last time we have seen the problem based on frequency shift property. Okay, so we have seen the 5 property of DFT. Now let us see the 6th one, conjugate property. So today we are going to see the conjugate property and symmetry property. Conjugate property says that if x of n having DFT x of k, then what is the DFT of conjugate of x of n? So the DFT of conjugate of x of n, star indicate conjugate, isn't it? So this star will represent conjugate. So DFT of conjugate of x of n is equal to x of minus k star. Okay, that is x of minus k ka conjugate. Okay, so DFT of x of n conjugate is equal to x of minus k conjugate. X of minus k ka conjugate. It will be like this, isn't it? So let us see the proof of this. The DFT of x of n conjugate is equal to, according to the definition, summation of function into wn raised to nk. Your function is x of n conjugate, isn't it? But wn raised to nk conjugate is equal to wn raised to minus nk. Why? Because this wn raised to, this is a twiddle. Okay, and this twiddle factor in the form of e raised to j theta. So e raised to j theta का conjugate क्या रहेगा? E raised to minus j theta, isn't it? So e raised to j theta conjugate is e raised to minus j theta, and therefore we say that since this is a complex exponential, okay, and therefore its conjugate will be wn raised to minus nk, isn't it? So wn raised to nk का conjugate is wn raised to minus nk. Okay, and therefore this we can rearrange like this. Okay, conjugate हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको wn रेस्ट टू माइनस एन के लिखेंगे और उसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं हम लोग. तो x ऑफ n का कॉन्जुगेट, x ऑफ कॉन्जुगेट बाहर निकल रहे, कॉमन निकल रहे, तो इसको wn रेस्ट टू माइनस एन लिखेंगे एंड देन उसका कॉन्जुगेट करेंगे. सो wn रेस्ट टू माइनस एन का कॉन्जुगेट इज व्हाट इट इज, दैट इज wn रेस्ट टू n के, लाइक दिस. ओके, तो wn रेस्ट टू n के मिलेगा एंड यहाँ पे आप लोग का x ऑफ n कॉन्जुगेट मिलेगा, like this. Okay, and this is nothing but wn raised to n into minus k. Okay, and this is a DFT of x. This is we represent like this, x of minus k. So this term is x of minus k because इधर plus k रहेगा तो x of k बोलते हैं हम लोग. अगर इधर minus k है तो we say that is x of minus k and उसका conjugate. So this is x of minus k conjugate. Okay, so this is just a property of conjugate property, isn't it? Next we are going to see the symmetry property. The symmetry property says that कि x of k and x of minus k conjugate का value same रहेगा. This property says that x of k equal to x of minus k conjugate provided that this x of n is a real value sequence. Okay, कि अगर x of n जो है आप लोग का real value sequence है, like a 1 2 3 4. Okay, so x of n, for example, it is 1 2 3 4, that is a real sequence. Okay, so if x of n is real value sequence, then its DFT is x of k, which is equal to x of minus k conjugate. Okay, now what is the meaning of this property? This property, if x of n is n point real value sequence, okay, then real part of x of k, so x of n है suppose 1 2 3 4, then उसका DFT लिया हम लोगों ने. ओके, तो उसका DFT 4 पॉइंट DFT रहेगा, वो जो उसको x ऑफ k बोल रहे हैं. सो x ऑफ k का जो रियल पार्ट रहेगा, इट इज सिमेट्रिक अबाउट n by 2. ओके, रियल पार्ट ऑफ x ऑफ k इज सिमेट्रिक अबाउट n by 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ x ऑफ k इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट n by 2. ओके, सिमेट्रिक मतलब एज इट इज रहेगा रियल पार्ट, ओके, अबाउट n by 2, एंड देन इमेजिनरी पार्ट इज एंटी सिमेट्रिक मतलब j रहेगा तो माइनस j रहेगा, इट इज एंटी सिमेट्री बोलते हैं हम लोग, इजंट इट? ओके, सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस. सो x ऑफ k जो है, x ऑफ k इज इक्वल टू समेशन ऑफ x ऑफ n wn रेस्ट टू n k. ओके, अभी ये प्रॉपर्टी का प्रूफ करना है हम लोगों को. तो x ऑफ k दिए, दिस इज एज पर डेफिनेशन, DFT डेफिनेशन, x ऑफ k विल बी लाइक दिस. देन उस पर से हम लोग x ऑफ माइनस के ऑप्टेन करेंगे, x ऑफ माइनस के स्टार ऑप्टेन करेंगे एंड दोनों सेम है क्या चेक करेंगे, isn't it? तो दिस इज x ऑफ k, wn raised to n k, wn is what it is, e raised to minus j 2 pi by n, isn't it? So
this is a Wn raised to nk in terms of exponential function, isn't it? Now e raised to j theta, this is e raised to minus j theta, and e raised to minus j theta is nothing but cos theta minus j sin theta. तो इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा तो ऐसा हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स ऑफ एन इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एन के अपॉन एन माइनस जे साइन ऑफ 2 पाई एन के अपॉन एन. तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में लिखा हम लोगों ने एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस जे थीटा को, तो ये आ गया. फिर एक्स ऑफ माइनस के कर रहे हैं, के का माइनस के कर रहे हैं, तो इधर के का माइनस के करेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट व्हाट इट इज कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, बराबर है. साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट इट इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे साइन ऑफ 2 पाई एन के अपॉन एन, isn't it? ओके, नाउ विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस एक्स ऑफ माइनस के. ये इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम लोग. कॉन्जुगेट कैसा लेते हैं हम लोग, जे का माइनस जे करके कॉन्जुगेट लेते हैं हम लोग, isn't it? तो रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, एंटीसिमेट्री करते हैं, मतलब जे का माइनस जे करते हैं. तो दिस इज ये प्लस जे था तो उसको माइनस जे किया, तो ये हो गया एक्स ऑफ माइनस, ये इक्वेशन का कॉन्जुगेट विल बी दिस वन. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स ऑफ के. ओके, ये एक्स ऑफ के था आप लोग का, यही एक्स ऑफ के यहाँ पे है, isn't it? So these two are same. It shows that x of k is equal to x of minus k star, isn't it? Simple proof है, isn't it? तो x of k लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, उस पर से x of minus k लिखा, देन उसका कॉन्जुगेट किया, and it is seen that x of k and x of minus k stars are equal. Okay, it will be like this. Now let us see the problem based on this symmetry property. First of all, there is some theory related to this. Let us see. If x of n is said to be even, then x of n is equal to x of minus n. As per the definition of even number, अगर x of n even है तो x of n and x of minus n का वैल्यू सेम रहेगा. Okay, taking DFT, x of k, x of n का DFT x of k, x of minus n का DFT x of minus k as per this time reversal property. Okay, तो x of k is equal to x of minus k. अगर x of n ऑड सीक्वेंस रहेगा, देन उसका DFT लेना रहेगा आप लोग का, तो कैसा लेते हैं हम लोग, तो उसका DFT ये इक्वेशन से लेंगे हम लोग. x अगर इफ x of n is odd number, then it should satisfy this condition. x of n should be equal to minus x of minus n. Okay, taking DFT of this x of n का DFT x of k minus as it is x of minus n का DFT x of minus k. So odd सीक्वेंस अगर रहेगा तो उसका DFT कैसा लेंगे हम लोग, तो उसको x of माइनस के ऑप्टेन करेगी, एक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ऐसा. ओके, नाउ सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन, तो इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन इज एक्स सी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एंड इज हाफ ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन. सिग्नल एंड सिस्टम में बेसिक हम लोगों ने देखा है पहले. ओके, द इवन पार्ट निकालने का फॉर्मूला है दिस वन, इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन. Okay, so what is the DFT of even part of x of n is? So DFT of even part of x of n is represented by xc of k, and which is equal to half of x of k plus x of minus k. Similarly, odd part of x of n है, उसका अगर DFT निकालना है तो कैसा निकालेंगे, तो odd part of x of n will be represented in terms of x of n like this, x of n which is equal to half of x of n minus x of minus n. Taking its DFT, the DFT of odd part of x of n is half x of k minus x of minus k, isn't it? Then this is a one proof related with this symmetry property. Prove that DFT of two real sequences can be obtained by performing DFT only once. Okay, so let us say that दो real sequences है, suppose p of n एक sequence है which is equal to 1 2 3 4, and q of n दूसरा sequences है जिसका वैल्यू है 5 6 7 8. अभी ये दो अलग अलग सीक्वेंसेस है, रियल सीक्वेंसेस है, इसका DFT लेना है मुझे. तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि P ऑफ n का DFT डेफिनेशन से निकालेंगे, Q ऑफ n का DFT डेफिनेशन से निकालेंगे, ऐसा दोनों का DFT निकालेंगे. बट मुझे एक ही बार DFT परफॉर्म करना है और ये दोनों का DFT निकालते आना चाहिए. ओके, तो कैसा निकाला जाता है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द DFT ऑफ टू रियल सीक्वेंसेस बाय परफॉर्मिंग DFT ओनली वंस. Okay, like this. तो कैसा करते हैं वो है ये. Okay, so let P of Q and Q of Q are the DFT of two sequences P of n and Q of n respectively.
तो दो रियल सीक्वेंसेस अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, एक पी ऑफ एन है, दूसरा क्यू ऑफ एन है, उसका डीएफटी पी ऑफ के एन क्यू ऑफ के एन। तो एक्स ऑफ एन हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, जो रियल सीक्वेंसेस दिया है आप लोगों को पी ऑफ एन एंड क्यू ऑफ एन, उसका डीएफटी लेना है, उसको हम लोगों ने उस पर से एक्स ऑफ एन ऑब्टेन करेंगे। एक्स ऑफ एन कैसा ऑब्टेन करेंगे, तो ऐसा करेंगे पी ऑफ एन प्लस जे क्यू ऑफ एन। ओके, वो इक्वेशन 1 हो जाएगा। अभी एक्स ऑफ एन का कॉन्जुगेट लेना है मुझे, तो जे इज रिप्लेस बाय माइनस जे एन, सो दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ एक्स ऑफ एन। अभी दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा पी ऑफ एन, इधर ऐड करता हूँ तो ये दोनों का एडिशन ऐसा हो जाएगा, इधर ऐड करता हूँ तो 2 पी ऑफ एन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पी ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, पी ऑफ एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ एन कॉन्जुगेट। इसका डीएफटी लेते तो क्या हो जाएगा, डीएफटी ऑफ पी ऑफ एन इज पी ऑफ के विच इज इक्वल टू हाफ एक्स ऑफ के प्लस एक्स ऑफ माइनस के स्टार। एक्स ऑफ एन कॉन्जुगेट का डीएफटी क्या है एज पर दिस कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, एक्स ऑफ माइनस के स्टार। तो देखो पी ऑफ एन का डीएफटी मिल गया आप लोगों को। ओके, सो पी ऑफ एन का डीएफटी मिल गया। पी ऑफ एन का डीएफटी निकालने के क्या लगेगा आपको, ओनली एक्स ऑफ के। एक्स ऑफ के मतलब ये इसका डीएफटी ऐसा। ओके, सेकेंड, दोनों का सब्ट्रैक्शंस करते हैं हम लोग तो क्यू ऑफ एन मिल जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शंस करते हैं तो क्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2j एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन स्टार ऐसा। ओके, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शंस किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो 1/2j हो जाएगा। ओके, एंड इट विल बी क्यू ऑफ एन प्लस क्यू ऑफ एन इज 1/2। ओके, तो ये हो गया एक्स ऑफ क्यू ऑफ एन। इसका डीएफटी लेके तो ये रहेगा, isn't it? तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि दो रियल सीक्वेंसेस था पी ऑफ एन एंड क्यू ऑफ एन, उस पर से मैंने एक्स ऑफ एन निकाला एंड एक्स ऑफ एन का डीएफटी एज पर डेफिनेशन निकाला। एक बार का एक्स ऑफ एन का डीएफटी मिल गया आपको, मतलब एक्स ऑफ के मिल गया। एक्स ऑफ के मिल गया है तो उस पर से आप लोग पी ऑफ के निकाल सकते हैं, उस पर से क्यू ऑफ के निकाल सकते हैं यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज। ओके, मतलब दो सीक्वेंसेस था पी ऑफ एन एंड ए ऑफ एन, बट उसका डीएफटी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो पी ऑफ एन एंड क्यू ऑफ एन को एक्स ऑफ एन में लिखा एंड एक्स ऑफ एन का डीएफटी लिया एक ही बार। ओके, एंड एक्स ऑफ के मिल गया, फिर उस पर से एक्स ऑफ के से हम लोगों ने पी ऑफ के एंड क्यू ऑफ के ऑब्टेन किया। ओके, तो एक ही बार डीएफटी परफॉर्म किया हम लोगों ने और दो ये निकाला, डीएफटी निकाला, दो सीक्वेंस का डीएफटी निकाला। ओके, सो लेट अस सी नाउ प्रॉब्लम, इसके बेस प्रॉब्लम ले रहे, सेम प्रॉब्लम। कंसिडर टू रियल सीक्वेंसेस पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 5 6 7 8। फाइंड डीएफटी ऑफ ईच सीक्वेंस बाय अप्लाइंग डीएफटी ओनली वंस। ओके, तो जैसा हम एक्स प्रॉब्लम थ्योरी में किया वैसा ही सेम इधर करना है। पी ऑफ एन लिखना, एक्स ऑफ एन ऑब्टेन करना है। एक्स ऑफ एन इज व्हाट इज पी ऑफ एन प्लस जे क्यू ऑफ एन। तो पी ऑफ एन है 1 2 3 4, क्यू ऑफ एन इज 5 6 7 8। ओके, तो 1 ये फॉर्म में लिखना है। 1 पी ऑफ एन 1 है, 1 प्लस जे क्यू ऑफ एन क्या है 5, 1 प्लस जे 5, देन 2 प्लस जे 6, 3 प्लस जे 7, 4 प्लस जे 8। ऐसा हो गया एक्स ऑफ एन, दिस इज एक्स ऑफ एन। अभी इसका डीएफटी लेंगे एज पर डेफिनेशन, तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड उसका डीएफटी ले रहे हैं हम लोग। ये आपका ट्विडल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट मैट्रिक्स। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये डीएफटी आ गया। ओके, सो एक ही बार डीएफटी अप्लाई किया और ये डीएफटी एक्स ऑफ के आ गया। फिर उस पर से हम लोगों ने पी ऑफ एन ऑब्टेन किया, जैसा हम लोगों ने थ्योरी में ऑब्टेन किया था। एक्स ऑफ एन स्टार लिखा, एक्स ऑफ एन स्टार से फिर हम लोगों ने पी ऑफ एन ऑब्टेन किया बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 पी ऑफ एन, एंड देन उसका डीएफटी लिया, तो ये हम लोग को पी ऑफ के का इक्वेशंस मिल गया। पी ऑफ के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स ऑफ के प्लस एक्स ऑफ माइनस के स्टार। ओके, तो दिस इज हाफ ऑफ, दिस इज एक्स ऑफ के, एक्स ऑफ माइनस के स्टार। एक्स ऑफ के का एक्स ऑफ माइनस के कैसा करते हैं हम लोग, तो एक्स ऑफ के का एक्स ऑफ माइनस के करने के लिए हम लोग इसका ये जो है, ओके, तो इसको हम लोग एक्स ऑफ के का एक्स ऑफ माइनस के करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज कि विल राइट दिस इज इन द रिवर्स ऑर्डर। ओके, एक्स ऑफ के का एक्स ऑफ माइनस के कैसा करेंगे हम लोग, ओके, वैसा एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ माइनस एन कैसा करते थे हम लोग, तो पहला नंबर एज इट इज, बाकी तीनों जो है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे। वैसा ही ये एक्स ऑफ के है, उस पर से एक्स ऑफ माइनस के निकालना है, तो इधर हो जाएगा 10 + 26 के जे एज इट इज,
ओके एंड ये इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे ऐसा, मतलब इधर -4j हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा, isn't it like this ऐसा. एंड देन व्हाट वी आर, दोनों को हम लोग x ऑफ -k का स्टार देन कॉन्जुगेट ऐसा है. मतलब ये हो जाएगा व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 10 प्लस 26j, तो इट विल बी 10 माइनस 26j, बराबर है. देन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है हम लोगों ने ऐसा, -4j इधर है, -4j का कॉन्जुगेट लेना है अभी, तो व्हाट इट इज +4j, -2j का कॉन्जुगेट विल बी -2 + 2j, कॉन्जुगेट में j का -j कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस इज -4 एज इट इज, बराबर है. ये हो गया x ऑफ -k स्टार. समझेगा x ऑफ -k स्टार कैसा लिखा हम लोगों ने, तो x ऑफ -k स्टार लिखने के लिए व्हाट वी हैव डन इज कि ये जो है पहला नंबर एज इट इज लिखा, ये x ऑफ k है, तो x ऑफ k का x ऑफ -k कैसा कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, ये इधर लेके जाएंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे. सो दिस इज -4j, ओके, देन -2 2j -4, दिस इज हो गया x ऑफ -k. अभी x ऑफ -k का कॉन्जुगेट करना है आपको, तो इसका कॉन्जुगेट करना है, तो j इज रिप्लेस बाय -j, तो इट विल बी +4j हो जाएगा, -2 + 2j हो जाएगा, एंड दिस विल बी -4. दिस इज x ऑफ -k स्टार, isn't it? तो ऐसा हम लोगों ने x ऑफ -k स्टार ऑब्टेन किया. अभी दोनों का एडिशंस करते हैं. ओके, तो दोनों का एडिशंस, पहला नंबर का कितना हो जाएगा 20, दूसरे नंबर का कितना हो जाएगा -4 + 4j, तीसरे नंबर का कितना हो जाएगा, तो -2 -4 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा. देन तीसरा लास्ट नंबर -4 4j ऐसा हो जाएगा. डिवाइड बाय 2 करना है यहाँ पे, तो ये 10 -2 + 2j -2 -2 तो 1 2 3 4 का DFT यही है ना, 10 -2 + 2j -2 2j, isn't it? तो ऐसा हम लोगों ने DFT ऑफ लाइक फाइंड आउट किया. तो ये सीक्वेंस का DFT यहाँ पे मिल गया. अभी ये सीक्वेंस का DFT ऑब्टेन करना है, तो सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, फार्मूला जैसा पहले ऑब्टेन किया था हम लोगों ने, ये फार्मूला है थ्योरी में जैसा देखा था हम लोगों ने. तो दिस इज x ऑफ k. अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शंस करना है, x ऑफ k, दिस इज x ऑफ -k स्टार, दोनों का सब्ट्रैक्शंस करना है. दोनों का सब्ट्रैक्शंस करते तो 10 - 10 कैंसिल हो जाएगा, 26j + 26j 52 से -4 -4j -2 -2j -2 + 2j, तो ये पहला +2 हो जाएगा, +2 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा, -2j -4j हो जाएगा, and this is become plus, so +4 -4j, and this is a DFT of Q of n. okay? तो ये प्रॉब्लम में देखा हम लोगों ने कि DFT एक ही बार यूज किया, एंड ये दो सीक्वेंस का DFT हम लोगों ने निकाला. दिस इज वी से द ब्यूटी ऑफ दिस सिमेट्री प्रॉपर्टी, और वी से द थैंक यू.